Hello everyone. Revision series ର ଏଇଟା ହେଲା first class. ତ let us see. Salient features of Indian Constitution. The first ହେଲା lengthiest constitution. ତ ଆମ constitution is the most lengthiest constitution of the world. ଯଦି ଆମେ ତାକୁ other କୋଉ constitution ସହିତ compare କରିବା ତ definitely more in terms of number of articles ହେଇଗଲା schedules ହେଇଗଲା number of provisions ହେଇଗଲା ଆମର constitution actually ବେଶୀ bulky ଆଉ ତାର ରିଜନ ବି ସିମ୍ପଲ ତାର ରିଜନ ବି ଏଇଆ କି ଦ ହେଟେରୋଜିନିଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି କେତେ କଲଚର ଅଛି କେତେ ରିଲିଜନ ଅଛି ଓକେ ଆଉ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଅଛି ତ ସବୁ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେୟାର ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲେନ୍ଦିଏଷ୍ଟ ୱାନ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ ରୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଡ୍ର କରାହେଇଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1935 ଦେନ୍ ତାପରେ ସବୁଠୁ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ୱିଥ ୟୁନିଟାରୀ ବାୟସ ତ ଆଇଦର ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ହବା କଥା ଅର୍ ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ ହବା କଥା ଆମେ ଯଦି ଅଲ୍ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ କୁ ନୋଟିସ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପଲିଟି କୁ ଏକ୍ସାମାଇନ କରିବା ତ ଆଇଦର ସେମାନେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ୟୁନିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ୟୁଏସଏ କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ୟୁକେ କୁ ଦେଖିବା ତ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ୟୁନିଟାରୀ ବାୟାସ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ୟୁକେ ର ପଲିଟି ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ actually very different from both. India is very different from USA and very different from UK. तो ताहले इंडिया कोठी लाए करूचे इंडिया इज लाइंग इन बिटवीन तो फेडरल सिस्टम ର ସେଇ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ସେ ସେଇଠୁ ବି ନେଇଛି ମାନେ ଆମେରିକା ଠୁ ନେଇଛି ୟୁଏସଏ ଠୁ ନେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା ୟୁନିଟାରୀ ବାୟାସ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ବି ହୋଲ୍ଡ କରାହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ कि इंडियन पॉलिटी बा इंडियन रो जो स्ट्रक्चर अछि ताको बेटर सूट करिवो ऑल्दो फेडरल वर्ड बा जो फेडरेशन वर्ड अछि एटा कोठी भी यूज करा हेनी जेमिति कोन इंडिया को केमिति डिस्क्राइब करा हेछि आर्टिकल 1 कोन अछि आर्टिकल 1 रे इंडिया को कोन डिस्क्राइब करा हेछि आर्टिकल 1 रे इंडिया को डिस्क्राइब करा हेछि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट ओके फेडरल फीचर्स कौन अच्छी फेडरल फीचर्स जदि हमें कहबा टू गवर्नमेंट ओके टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट जेमती सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर अच्छी ठीक अच्छे डिवीजन ऑफ पावर हे गला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हे गला तापरे लेट्स से बाई कैमेरालिज्म हे गला बुझी होची तो एई सब जिंस एक्चुअली ताकू तार गोटे फेडरल नेचर प्रोवाइड करची इंडिया पर बट एट द सेम टाइम यूनिटरी बा नॉन फेडरल फीचर्स भी अच्छी जेमती गोटे स्ट्रॉन्ग सेंटर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन जेमती यूएसए हमें जदि देखिबा जोटे कंप्लीटली फेडरल सिस्टम होल्ड करूची तो यूएसए रे जनरली कोन गोटे स्टेट लेवल रे तांकर कॉन्स्टिट्यूशन अछि आ गोटे सेंट्रल लेवल रे कॉन्स्टिट्यूशन अछि बट इन इंडिया देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तापरे आउ कोन सिंगल सिटीजनशिप कहली फर्स्ट ही जोटे सबुठु बेसी इंपोर्टेंट सिंगल सिटीजनशिप ठीक अछि तापरे जुडिशियरी इज इंटीग्रेटेड आवर जुडिशियरी इज इंटीग्रेटेड तापरे ऑल इंडिया सर्विसेज अछि इमरजेंसी प्रोविजंस अछि ओके जेमिति नेशनल इमरजेंसी रे ଯେତିକି ବି ଫେଡେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଅଛି ଦେ ଅଲ୍ ସିଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ actually complete power hold kare center okay I hope all these things are very well known to you people okay
नेक्स्ट हला रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ना सेटा पूरा रिजिड अच्छी ना एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल अच्छी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कार रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हला यूएसए रो। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कार अगेन यूके। एटा कहा जाए कि यूके पार्लियामेंट कैन नॉट कन्वर्ट ए मेल इनटू ए फीमेल और वाइस वर्सा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ता माने से कोउ भी आर्टिकल को बहुत इजीली चेंज कर दिया जाई परिबो। जेमिति इंपोर्टेंट आर्टिकल लेट से को फंडामेंटल राइट्स को इंडिया रे चेंज करिवार अछि। तो ता पई बहुत ही वेरी हार्ड प्रोसीजर अछि इन इंडिया। बट यूके रे कोन किछि भी आर्टिकल चेंज करिवार अछि, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिवार अछि, तो बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दरकार नहीं, गोटे ऑर्डिनरी बिल आनिबे आउ सेही पर्टिकुलर प्रोविजन को चेंज कर दिया जिवो। बट एठी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आसीबो ताकू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी अछि, हायर मेजॉरिटी दरकार। जदि किछि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करिवार अछि तो रेटिफाइड बाय मोर देन हाफ ऑफ स्टेट, सेही प्रोविजन भी रहिछि। ठीक अछि। नेक्स्ट हला पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जेमती मु लास्ट वीडियो रे भी कहउतली कि कोन पई हमें पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट adopt कले and why not presidential form of government। तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एइथि पई हमें adopt कले कि ऑलरेडी जेतले ब्रिटिशर्स माने एठी थिले तो सेमाने जो वे रे गवर्नमेंट को चलै थिले सेही जिंस एक्चुअली गोटे फेमिलियरिटी क्रिएट कर देथिला। तो जेहेतु गोटे फेमिलियरिटी क्रिएट कर देथिला गोटे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल सहित। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इज नथिंग बट पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जेहेतु गोटे फेमिलियरिटी थिला एंड लोक माने एक्वेंटेड हेई सारथिले तो सडनली ताको अगेन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे चेंज कर दबा डिफिकल्ट हे जबो। जदि हमें देखिबा ना हमर इंडिया रे जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था फर्स्ट तो कंपनी रूल करूथला, तापरे क्राउन रूल आसिला। क्राउन रूल जेतले आसिला एंड टिके पॉलिटिकल रिनाइसेंस आसिला। जस्ट रिमेंबर मॉडर्न हिस्ट्री कि जेतेबेले पॉलिटिकल रिनाइसेंस आसिला धीरे धीरे कोन कले गोटे डोमिनियन स्टेटस बा गोटे रिप्रेजेंटेशन इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट से माने सीक कले। दे ट्राई टू गेट रिप्रेजेंटेशन एंड राइट। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल क्लास थिला और जो हायर क्लास थिला इंडिया रो से माने बहुत ही एक्वेंटेड है कि थिले। तो सेति पे दे एडॉप्टेड दिस पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो फीचर्स कौन कौन? पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो फीचर्स हला सबुठ फर्स्ट फीचर्स हला गोटे नॉमिनल आउ गोटे रियल एग्जीक्यूटिव था। माने एग्जीक्यूटिव हेड गोटे नॉमिनल आउ गोटे रियल। जदि आम कंट्री रे देखिबा तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नॉमिनल हेड किए अछि? नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट। सेही जिंस हमें जदि यूके रे देखिबा तो तांकर सेठी नॉमिनल हेड किए अछि? तांकर सेठी नॉमिनल हेड तांकर क्वीन। ओके, बट रियल एग्जीक्यूटिव एठी किए? प्राइम मिनिस्टर। एंड द सेम थिंग होल्ड ट्रू फॉर यूके आल्सो। यूके रे भी तांकर रियल एग्जीक्यूटिव हला प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हला रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी जो पार्टी होल्ड करिवो सेही पार्टी रूल करिवो। तापरे तो गोटे हला मेजॉरिटी हे गला, नॉमिनल हेड वाला सिस्टम हे गला। देन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट हला सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंटरी सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंटरी सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी माने कौन? सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट माने केते ताको फ्रीडम मिलुची। कौन आमर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिलिची? कौन पार्लियामेंट चाहिए को भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव कर दे पारिबो कि? नो। पार्लियामेंट चाहिए जदि को भी आर्टिकल बा को भी इम्पोर्टेंट लेट्स से फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर लेट्स से 15 कौन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए पार्लियामेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन रू आर्टिकल 15 रिमूव कर दे पारिबो? ऑब्वियसली नो। बट कौन को भी आर्टिकल को भी लेट्स से इंपोर्टेंट आर्टिकल जदि यूके रो पार्लियामेंट चाहिला कौन से रिमूव करि परिबो? यस। तो बेसिकली कहिबा पई गले इंडियन पार्लियामेंट
सोवरेंटी तो एंजॉय करे बट इट इज लिमिटेड। ठीक अछि जो एंजॉय करूची सेटा हला लिमिटेड। एंड आल्सो जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी कौन जेमती जुडिशियल सुप्रीमेसी जनरली होल्ड यू नो judiciary of this USA is much more powerful than UK। तो both judicial supremacy ଆଉ sovereignty ର ଗୋଟେ healthy synthesis ଗୋଟେ ମଝି ରାସ୍ତା ବାହାର କରାହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଜୁଡିସିଆରୀ ମାନେ କଣ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମିତି ହେଇନି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇକି ଅଛି। ଓକେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ର ଅଣ୍ଡରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କଲା କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା ସେଇ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ଜଜମେଣ୍ଟ ସେଇଟା obviously କୋଉ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ଓକେ नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। एगेन आम डिटेल रे पढ़िबा फंडामेंटल राइट तो एठी शॉर्ट रे किछि डिस्कस करिबा नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक अछि तापर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सो दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोटा कि स्टेट पई लिखा है द स्टेट शैल डायरेक्टिव प्रिंसिपल जेतला हमें पढ़िबा तो हमें कोन लिखा है स्टार्टिंग में द स्टेट शैल डू दिस द स्टेट शैल डू दैट सेही सब जिंस। ओके इन डेप्थ रे डेफिनेटली पढ़िबा नेक्स्ट डीपीएसपी पढ़िला बेले। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मे बी आमे जदी जापानीज पॉलिटी बा जापान को जदी छाड़ दबा तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमको जनरली फर्स्ट एक्चुअली सेमाने इंटीग्रेट करथिले फंडामेंटल ड्यूटीज टा सेमाने ही दे हैव इंटीग्रेटेड दिस। और एटा फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली आगरु आम कॉन्स्टिट्यूशन नथिला यू पीपल नो फंडामेंटल ड्यूटीज आगरु आम कॉन्स्टिट्यूशन नथिला एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे इंट्रोड्यूस करा हैतिला फंडामेंटल ड्यूटीज दैट थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी। ओके पार्ट 4 ए रे ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज अछि जोटा की आर्टिकल 51 ए। ठीक अछि आउ 86th अमेंडमेंट एक्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 11 फंडामेंटल ड्यूटी एड हेतिला। ठीक अछि आउ गोटे ड्यूटी एड कर दिया जाइछि। तापरे फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड जदी आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस सेटा हला एटा नॉन जस्टिसिएबल। जदि तमरो फंडामेंटल ड्यूटीज लेट्स से तमे फंडामेंटल ड्यूटीज किछि भी लेट्स से गोटे को पर्टिकुलर पर्सन मानोनी फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक अछि तो देन दैट एग्रीव्ड पर्सन लेट मी गिव ए प्रॉपर एग्जांपल लेट्स से फादर अछि आउ सन अछि तो ऑब्वियसली सन को पढ़ेइबा बा सन रा एजुकेशन आर्टिकल 21 ए रे कंपलसरी एजुकेशन अछि बट फादर रा भी गोटे फंडामेंटल ड्यूटी अछि बट सपोज फादर से पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी पूरा करले तार प्रॉपर एजुकेशन और केयर गोटे फादर लेट्स से तार ड्यूटी से फुलफिल कला तो सन कैन नॉट गो टू कोर्ट सन सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबनी जस्टिस पे सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक अछि डीपीएसपी इज आल्सो कॉल्ड नॉन जस्टिसिएबल जदि स्टेट लेट्स से डीपीएसपी रे लिखा है कि समस्तंकु लेट्स से दिस इक्विटी तांकर हेल्थ रिलेटेड से जिंस फंडामेंटल राइट जदि वायलेट हला तमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परियो बट जदि डीपीएसपी किछि अछि जेमति लेट्स से यूनिफॉर्म सिविल कोड अछि डीपीएसपी रे बट यूनिफॉर्म सिविल कोड ओडिसा रे नाही जदि यूनिफॉर्म सिविल कोड ओडिसा रे नाही तो कोन मु सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबी ओडिसा गवर्नमेंट रे अगेंस्ट कि ओडिसा गवर्नमेंट से यूनिफॉर्म सिविल कोड ओडिसा रे लागू करिनी डेफिनेटली आई कैन नॉट डू दैट। ठीक अछि नेक्स्ट हला सेक्युलर स्टेट सेक्युलरिज्म एबे सेक्युलरिज्म ना तार दीटा मीनिंग अछि सेक्युलरिज्म रो गोटे इंडियन मीनिंग अछि आ गोटे वेस्टर्न मीनिंग अछि। ओके इंडियन मीनिंग कौन इंडियन मीनिंग एक्चुअली मॉडिफाइड
model of Western secularism. Western secularism or Western concept of secularism mane hela complete separation between religion and state. State और religion completely separate ହେଇକି ରହିବେ. State will not interfere in religion. Okay, कि state ର କୋଉ ବି body religious କୋଉ religious body ସହିତ they will not let's say not cooperate, they will not involve them in any religious body. Basically कौन ना western model of secularism religion को गोटे personal affairs ବୋଲି ମାନେ. Okay, religion is not a social affair in the eye of western polity. But at the same time India रे कौन हुए, आमे इंडिया रे secularism को पूरा extremely watertight compartment ଯେମିତି western western country ରେ ଗୋଟେ watertight compartment draw କରିଦିଆଯାଇଛି center ଆଉ religion ବା state ଆଉ religion, government ଆଉ religion ଭିତରେ ଗୋଟେ watertight compartment draw କରିଦିଆଯାଇଛି. ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ watertight compartment draw କରାଯାଇନି. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରେ. ଓକେ, କଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ. Indian government constructive interference karibo. Triple talaq. Triple talaq is also a religious affair. Triple talaq is also a religious affair. कौन Indian government interfere कलानी? Triple talaq is basically invalid and it is also punishable at the same time. तो जदि एमिति किछि एलिमेंट को भी रिलीजन रे अछि जोटा पब्लिक हेल्थ पब्लिक मोरल को डिसरप्ट करूची तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट विल इंटरफेयर. आउ खाली नेगेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं इंडियन सेक्युलरिज्म रो. खाली जदि रिलीजन रे किछि नेगेटिव एलिमेंट अछि तो ताको रिमूव करिया पे खाली स्टेट इंटरफेयर करिवनी. बट एट द सेम टाइम स्टेट इंटरफेयर करी कि जो माइनॉरिटी रिलीजन अच्छी तो तांको भी हेल्प करिवो से मनी डोनेट कर दिया जाई परिबो. इंडियन गवर्नमेंट विल डोनेट मनी. ठीक अछि, तो एई सब जिंस अछि जोटा इंडियन सेक्युलरिज्म को डिफरेंट बनाए वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म रे. ओके, सो नेक्स्ट हला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज. ओके, नेक्स्ट हला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज रे वोटिंग एज रिड्यूस कर दिया जाइए 61st अमेंडमेंट एक्ट जोटा 1988 रे पास हेइथिला. तो सेइटा 21 आगरो वोटिंग एज केते थिला 21 ताको रिड्यूस कर दिया जाई कि 18 आनी दिया गला 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे. ओके, नेक्स्ट हला सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप रो सिंपल मीनिंग हला इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू कैंट बी सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री. सपोज गोटे पर्सन ए अछि ताकू धरनियो कनाडा भल लागिला बट से एट द सेम टाइम इंडियन सिटीजन अछि. तो से जदि चाहिबो कि मते कनाडा रो सिटीजनशिप होल्ड करिवार अछि तो विदाउट एनी ताकू किछि कहिबा पे इंडियन गवर्नमेंट को भी पड़िबनी. वंस से कनाडा रो सिटीजनशिप एक्वायर कला से इंडियन सिटीजनशिप लूज कर दबो. ठीक अछि, ताकू स्पेशली किछि नोटिफाई करिया पे पड़िबनी, किछि दरकार नहीं. Once you become a citizen of any other country, while holding citizen of India, you cease to exist to be a citizen of India. Okay? Once तमे को अलगा देशर citizenship acquire कर देलो, तो simultaneously with immediate effect तमे Indian citizenship lose कर दबो. नेक्स्ट हला सिंगल सिटीजनशिप सरला. नेक्स्ट हला इंडिपेंडेंट बॉडीज. इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन अछि? इंडिपेंडेंट बॉडीज सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. बेसिकली एमाने कौन करंती जेमती स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हे गला, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन हे गला, ओके, इलेक्शन कमिशन हे गला. एक्चुअली दे प्रोटेक्ट, दे अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. यदि गवर्नमेंट डू समथिंग रॉन्ग, डू समथिंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सेही केस रे
these independent bodies, they hold accountable ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେକରରୁ କିଛି ବି ଫଣ୍ଡ they are taking out without any appropriation, then କଣ ହବ CAG will hold accountable that particular government और ଏମାନେ directly answerable ବା directly report submit କରନ୍ତି parliamentary, okay, and president କୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇ reason ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ these are the bodies which do bulwarks for the democratic system। କଣ କୁହାଯାଏ bulwark। ନେକ୍ସଟ ହେଲା emergency provision। emergency provision ରେ ଗୋଟେ ହେଲା national emergency article 352। national emergency is article 352। then we have state emergency or president rule। although state emergency ना constitution ରେ mention ହେଇନି, but president rule mention ହେଇଛି, exactly ଏଇ name mention ହେଇଛି। ତ president rule କୋଉ article 356 ଆଉ 365। obviously कोउ case रे 356 और 365 कोउ case रे, we'll discuss it in the chapter of national emergency, okay। then financial emergency is basically article 360, okay। then three tier of government, next is three tier of government। the three tier of government रे एठी try to understand। first ହେଲା ଗୋଟେ 73rd amendment ଅଛି, ଗୋଟେ 74th amendment ଅଛି। 73rd amendment ରେ କଣ ଅଛି? 73rd amendment ରେ ଅଛି पंचायती राज institution। 74th amendment ରେ କଣ ଅଛି? 74th amendment ରେ ଅଛି these municipality, okay। the part 9 schedule 11 73rd माने जो पंचायती राज institution एटा हला कौन part 9 schedule 11। the part 9 schedule 11 ଆଉ এই जो municipality एटा part again 9 schedule 12, okay। and also ये जो local level of government establish करिबा पछरे एक्चुअली गोटे डीपीएसपी भी अछि, केते आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 अनुसारे कौन हवा कथा? आर्टिकल 40 अनुसारे आर्टिकल 40 अनुसारे यदि आर्टिकल 40 मु रीड करिबी वर्बाटिम एक्जाक्टली, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एटा गोटे गांधीयन प्रिंसिपल, ओके। डीपीएसपी जेमति डिवाइड हेची गांधीयन सेक्युलर, ओके, सॉरी गांधीयन लिबरल एमिति डिवाइड हेची। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2011 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रो ताकू गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा गला, ओके। Okay, so next topic is sources of Indian Constitution। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सोर्सेस कौन? तो फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19 मोटिके लेट मी चेंज द कलर, ओके ओके। सो यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आमे सेइटू कोन बोरो करचे जेतले स्टार्टिंग जेतले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विषय रे कहूतिली लास्ट क्लास रे मे भी, तो मु सेतले एटा कहूतिली कि आमे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रू बहुत गुडे जिंस बोरो करछु, ओके। तो सेई बहुत इंपोर्टेंट जिंस जदी आमे देखिबा एंटायर पॉलिटी इंडिया रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रू बोरो हेछि। जेमती फेडरल सिस्टम, एबे फेडरल सिस्टम कंप्लीट फेडरल सिस्टम हे गला, ऑफिस ऑफ गवर्नर हे गला, जुडिशियरी हे गला, पब्लिक सर्विस कमिशन हे गला, इमरजेंसी प्रोविजन हे गला, हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक अछि, यार गोटे शॉर्ट फॉर्म अछि। ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म ऊपर तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तमे तमरा निजर शॉर्ट फॉर्म भी बनै परिबो।
गोटे मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म बा निमोनिक अछि याको मन रखिया पे जेफ गॉट पोटैटो ओके कौन कौन अछि जेफ गॉट पोटैटो ए जो जेफ तो गॉट पोटैटो तो एति के मन रख कि जेफ जेईएफ तीनटा जाकर गोटे गोटे पई मीनिंग अछि बट एठी खाली गॉट आउ पोटैटो रे खाली जी आउ पी रही गोटे यू नो डेडिकेटेड जो माने वर्ड अछि जेमति जे रे कोन हे जबो जे जुडिशियरी ई ई फॉर इमरजेंसी प्रोविजन एफ फॉर फेडरल स्कीम देन जी फॉर ऑफिस ऑफ गवर्नर ओके एंड ओ आउट किछि नै ओ आउट किछि नै ओके देन पी तो पी रे कोन हे जबो पी इज बेसिकली पब्लिक सर्विस कमिशन ओके सो तमे तमे निजर भी बनै परिबो एमिति बिल्कुल भी यू नो डिपेंडेंट रहिबा दरकार नहीं अलगा काहा ऊपर तम पाखरे यदि किछि बेटर निमोनिक आइडिया अछि डेफिनेटली यू शुड इम्प्लीमेंट दोस नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन सो यूएसए फंडामेंटल राइट्स आई डोंट नो एठी टाइपिंग एरर हे जाइछि ओके तो जुडिशियल रिव्यू हे गला इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हे गला रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हे गला ओके एंड आल्सो एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स ए फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली तळे आसीबा कथा टिके यू नो टाइपिंग एरर हे जाइछि and post of vice president. The fundamental rights, judicial review, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, ଆଉ post of vice president. ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହେଲା କାନାଡା କାନାଡାରୁ କଣ ଆସିଛି କାନାଡାରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଫେଡରେସନ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଓକେ ଫେଡରେସନ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର appointment of state governors by the center state governor ମାନଙ୍କ appointment then wasting residuary power in the center ତ ରେସିଡୁଆରୀ ପାୱାର ଡିଭିଜନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯୋଉ ବି ପାୱାର ମାନେ କିଛି ବି ଏମିତି ସ୍ପିୟର ବା କିଛି ବି ଏମିତି ଏରିଆରେ ଯଦି କିଛି ପାୱାର ରିଲେଟେଡ କିଛି କନସର୍ନସ ଅଛି ତ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ ବି ଲାଏ ୱିଥ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କାନାଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଓକେ ଏଣ୍ଡ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କାନାଡା ଠୁ ଆଣିଛେ नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कनकरेंट लिस्ट माने गोटे स्टेट लिस्ट अच्छी गोटे सेंट्रल लिस्ट अच्छी स्टेट लिस्ट रे स्टेट लॉ बनेइबो सेंट्रल लिस्ट रे सेंट्रल लॉ बनेइबो कनकरेंट लिस्ट रे बोथ विल मेक लॉ तो बोथ सेंटर आउ स्टेट have the power and authority to make law on the subjects of concurrent list but at the same time suppose गोटे ही टॉपिक ऊपर ओके गोटे ही सब्जेक्ट ऊपर बोथ स्टेट लॉ आउ सेंट्रल लॉ एक्जिस्ट करूची आउ बोथ सेन माने जो सेंट्रल लॉ अछि से स्टेट लॉ सहित कॉन्ट्राडिक्ट करूची तो सेही केस रे ओनली एंड ओनली स्टेट लॉ होल्ड करबो ओके तो स्टेट लॉ हैज गिवन सुपीरियोरिटी ओके प्रेफरेंस दिया है स्टेट लॉ को ठीक अच्छी तापर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स तो एटा ऑस्ट्रेलियन वर्ड नेक्स्ट जापान इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ओके जापान रो अना हेची प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ गोटे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अछि आ गोटे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अछि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ माने गोटे लॉ इज यू नो एनी लॉ इज जस्टिफाइड if सेई लॉ प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करा है कि सेई लॉ अंडर रे किछि भी कन्विक्शन करा गला तो ताहले लॉ इज जस्टिफाइड एंड आल्सो कन्विक्शन इज आल्सो जस्टिफाइड आउ गोटे अछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके आउ गोटे अछि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अनुसार खाली प्रोसीजर हवा कथा नो खाली प्रोसीजर ठीक हवा कथा नो जो तार लॉ र स्पिरिट आउ जस्टिस जो पर्सन जो एग्रीव्ड पर्सन ता सहित जस्टिस भी हवा कथा खाली प्रोसीजर ठीक हे गले गोटे लॉ को ठीक बोली मानि निया जीवनी ओके तो नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट वन यूके यूके रो पार्लियामेंटरी ओके यूके रो पार्लियामेंट बा यूके कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें
कौन आनिचे तो फर्स्ट हला पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाइकेमेरालिज्म सिंगल सिटीजनशिप आमर इंडिया रे जेमती सिंगल सिटीजनशिप सेमिति यूके मु सिंगल सिटीजनशिप माने एठी किछि अलगा मीन करूची एक्चुअली यूएसए रे कौन हुए यू आर ए सिटीजन ऑफ यू नो द सेंटर माने यूएसए एज ए होल तमे सिटीजन ऑफ यूएसए एंड आल्सो यू आर सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ यूएसए ओके तो दीटा टाइप रो सिटीजनशिप तमे होल्ड करूछ जे तमे यूएसए रे रहूछ त बट इंडिया रे सेमिति नो मु ओडिसा रे गोटे सिटीजन और इंडिया रे गोटे सिटीजन एमिति नो यूके रे भी सेमिति नो तो यूके और इंडिया रे माने सिंगल सिटीजनशिप होल्ड करंती तमे जो पार्ट ऑफ कंट्री रे रहूछ तमर सिटीजनशिप इज ओनली इन इंडियन सिटीजन not a citizen of Odisha, not a citizen of Andhra Pradesh, not a citizen of Arunachal Pradesh. Okay. Next चला Ireland. Again Ireland रू हमें DPSP आनीचे ठीक अछि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एबे गोटे जिंस कंफ्यूज करबनी याकू साउथ अफ्रीका सहित कंफ्यूज करबनी साउथ अफ्रीका रे कोन अछि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ठीक अछि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बट आयरलैंड रे कोन अछि नॉमिनेशन ठीक अछि देन फ्रांस फ्रांस रे रिपब्लिक हे गला आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एंड प्रीएम्बल नेक्स्ट चला साउथ अफ्रीका रे प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिया पे हमें कोन आनु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो सेही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करू एक्चुअली दैट इज बीइंग कॉपीड आउट ऑफ दिस साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट हला जर्मनी तो जर्मनी रो हमर कोन आछि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी रू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बस गोटे ही आछि कि फंडामेंटल राइट्स गुडा सस्पेंड हेई परिबो इमरजेंसी टाइम ठीक अछि नेक्स्ट हला सोवियत यूनियन रू कोन कोन आछि फंडामेंटल ड्यूटीज ओके सोवियत यूनियन रू फंडामेंटल ड्यूटीज आछि तापरे आइडियल्स ऑफ जस्टिस लाइक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करा जो जोटा प्रीएम्बल रे अछि सेटा आछि सोवियत यूनियन रे okay now let us move to the next section parts of constitution how को जगारु आछि derived from which तो गोटे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो एई जिंस इंपोर्टेंट एटा तो ऑलरेडी हे गला पढ़ा ही सारला बट एई जिंस किछि अछि जो जिंस की ऊपर मिसिंग थिला तो सेई जिंस मु ऐड कर देछि तो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रू आछि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर टा तापरे फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोडा जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी तो बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आसी अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जेमिति फंडामेंटल राइट आसी माने देखो एटा एक्चुअली एमिति भाबो फंडामेंटल राइट आसी अमेरिकन आउ एटा डीपीएसपी आसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ओके अच्छा ताले पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोठी आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एई जो फिलोसॉफिकल पार्ट और पॉलिटिकल पार्ट एटा एक्चुअली कंफ्यूजन करे तो तीनटा हला गोटे स्ट्रक्चरल पार्ट गोटे फिलोसॉफिकल पार्ट आउ गोटे पॉलिटिकल पार्ट स्ट्रक्चरल पार्ट आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रू फिलोसॉफिकल पार्ट आसी अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रू पॉलिटिकल पार्ट आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रू okay now let us move to the next section okay preamble so first let me read it once ठीक अछि फर्स्ट लेट मी रीड इट वंस प्रीएम्बल तो प्रीएम्बल रे कोन कहूची we the people of India having solemnly resolved okay we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic okay कोन अछि sovereign socialist secular democratic republic
यार शॉर्ट फॉर्म तमे इजीली तमे जानी परिबो जेमति कोन सोवरेन सो सोशलिस्ट सो सेक्युलर एसी सो से डियर ऑब्वियसली एटा पूरा फिट तो बसुनी जेमती सो रे सोशलिस्ट ही जाउची सो रे सोशलिस्ट ही माने सो रे सोशलिस्ट हला सो रे सोवरेन हे गला से रे सेक्युलर हे गला बट एठी डी रे तो डेमोक्रेटिक हे जाउची बाकी पुनी एआर रहि जाउची तो ताकू टिके तुमको टिके एडजस्ट करिया पे पड़ो तो जो एआर रहि जाउची सेटा हला कोन रिपब्लिक ठीक अछि तो सो से डियर रे तमे एई सब जिंस मन रखि परिबो तापरे नेक्स्ट पढ़िबा नेक्स्ट अछि एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सिक्योर करियो एबे इंपोर्टेंट एटा कि को टाइप रो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एबे प्रॉब्लम कोन हबो जस्टिस और लिबर्टी और जस्टिस और इक्वालिटी को कंफ्यूज कर दिया जाय कि क्वेश्चन बना ही परिबो एग्जाम रे जेମିତି क्वेश्चन रे एटा थिबो कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी मेंशन हेइची प्रीएम्बल रे बोली कि से इकोनॉमिक नहीं आछि जस्टिस रु आउ आनी कि इक्वालिटी रे रखि देछि इकोनॉमिक इक्वालिटी कोन प्रीएम्बल रे मेंशन हेइची नो इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रीएम्बल रे मेंशन हेइनी ठीक अछि तो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी हला लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ और वर्शिप ठीक अछि नेक्स्ट हला इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी and to promote among them all ठीक ଅଛି ଗୋଟେ opportunity ଆଉ ଗୋଟେ status next ହେଲା fraternity fraternity is basically brotherhoodness so assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation ठीक ଅଛି तो in our constituent assembly co date mention ହେଇଛି ଦେଖ 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution तो केबे एडॉप्ट ହେଇଛି अकॉर्डिंग टू जो को डेट मेंशन ହେଇଛି एटा बहुत इंपोर्टेंट कि को डेट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ହେଇଛି कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ହେଇଛି जो डेट सेटा हला 26 ऑफ नवंबर 1949 1949 मसिया नवंबर मास 26 तारिख ठीक अछि तो अगेन एठी एठी मेन जिंस हला कि इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा एक्चुअली तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही पारे जोटा एक्चुअली इंट्रोड्यूस करथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे सी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही पारे प्रीएम्बल बने दिया जाइछे ओके नाउ अमेंडमेंट कोन कोन आउ actually it holds basic philosophy and fundamental values of the constitution basic philosophy or fundamental values of the constitution ठीक अछि हमें ए नेक्स्ट जिंस पढ़िबा कि whether it can be amended or not एटा amendable amendments लिखि दिया ହେଇछि एक्चुअली एटा amendable or not हला एटा नेक्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक रे हमें पढ़िबा तो बेस तो फर्स्ट जिंस हला कि एटा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑब्वियसली देन बेसिक फिलोसॉफी और फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये होल्ड करूची ए फोर्थ वन इज रियली इंपोर्टेंट कौन अच्छी नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोविजन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ओके एटा गोटे सोर्स नुह लेजिस्लेचर रो पावर रो सोर्स नुह कि तांकर पावर को एटा प्रोहिबिट भी करूनी ठीक अछि नेक्स्ट हला सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन रिलेशन टू पार्लियामेंट हला एटा बहुत इंपोर्टेंट एठू एक्चुअली क्वेश्चन गुडा ट्विस्ट करके पका जाई परिबो तो फर्स्ट 1960 मसिया रे बेरुवारी यूनियन केस हेइतला कोन पई हेइतला एक्चुअली बेसिकली इट इज कंसर्न विथ द ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी जो बेरुवारी यूनियन थिला टेरिटरी सेटा पाकिस्तान को अंडर नेहरू नून एग्रीमेंट से एग्रीमेंट अंडर रे हमको एटा ट्रांसफर करबार थिला डिटेल इन डेप्थ रे बैकग्राउंड इशू को जिबानी बस कोन कोन सब इम्पैक्ट और लीगल प्रिंसिपल कोन थिला तो eight according to Supreme Court established territory session requires amendment under Article 368 not just Article 3
तो कन्स्टिट्यूशन को आम जमी एमेंड करूँ से वे आर्टिकल 368 रे एमेंड करने पड़ो. प्रिएम्बल इज ए गाइड नॉट ए सोर्स ऑफ पावर. ओके, सो प्रिएम्बल इज ए गाइड. तो वेरी यूनियन केस से ही प्रिएम्बल को गोटे गाइड बोली कंसीडर कर दिया गला. आउ सेति पई 9th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनागला सो दैट कि ए ट्रांसफर को एक्चुअलाइज करा जाई परिबो. ठीक अछि. नेक्स्ट तापर केस हला केशवानंद भारती केस. ठीक अछि, जोटा कि लैंड रिफॉर्म रिलेटेड थिला केरला रो. ओके, तो बेसिकली एठी कोन कर दिया गला. तो ओपिनियन बा एठी मु आउट जिंस छाड़ देली कि सुप्रीम कोर्ट रो ओपिनियन एक्चुअली एटा थिला कि प्रीएम्बल इंडिकेट्स जनरल पर्पस बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन इफ आर्टिकल्स आर एम्बिगुअस. ता माने सिंपल मीनिंग एया कि जदि सपोज कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल को इंटरप्रिट करिवार अछि बिकॉज से आर्टिकल टिके एम्बिगुअस अछि, अनक्लियर अछि, से आर्टिकल कोन कहिबा पई चाहूची वी डोंट नो. तो सेही केस रे आमे प्रिएम्बल को गोटे गाइड एठी कोआ हेछि ना गोटे गाइड बोली. प्रिएम्बल इज ए गाइड. एग्जैक्टली. तो प्रिएम्बल को आमे इंस्पिरेशन पई बा गोटे गाइड भाबरे यूज करि परिबा टू इंटरप्रेट दैट पर्टिकुलर लॉ. देन हला प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एटा केशवानंद भारती केस है. केशवानंद भारती केस से कहले कि प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट वेरी यूनियन रे कोन कहितले प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट हियर प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहले केशवानंद भारती केस रे. सेकंड केस रे आई मीन नॉट सेकंड, थर्ड केस से कौन कहले सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट द प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So basically final एटा कि preamble is a part of constitution and it can be used as a guide. It is neither a source nor a prohibition. एटा power रो source भी नुह कि एटा गोटे particular let's say legislature को limit भी करूनी. ठीक अछि. So basically याकू हमें एमिति तो कहिबानी कि powerless completely but less significant बने दिया गला. ठीक अछि. That's all for today. Next class we will discuss citizenship.